اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. الف اور حمزہ میں فرق. الف کبھی کیا تھا؟ الف ہمیشہ ساکن. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. بے جھٹکے یعنی کہ اس میں جھٹکا نہیں ہوتا. الف جو ہے حمزہ کے مقابلے میں بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. اس میں جھٹکا نہیں ہوتا. جیسے با الف زبر با ہے نا. جی. اور اگر حمزہ ساکن گائیں گے تو با حمزہ زبر با 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 تا حمزہ تا زبر تا یا حمزہ تا یا حمزہ پست یو یا حمزہ پست یو یو تو یہ سب تو دیکھا ہوگا تم نے. یو تو حمزہ جو ہے جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور الف جو ہے بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. الف پہ جھٹکا نہیں لگتا. حمزہ کے ساتھ تینوں حرکتیں آتی ہیں. زبر بھی آتا ہے, زیر بھی آتا ہے اور پیش بھی آتا ہے. لیکن الف سے پڑھو پہلے. حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا. حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی حمزہ ساکن ہوتا ہے. اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھو کہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. بسمی ہے نا. تو ایسے حمزہ جہاں بھی ساکن ہوگا تو وہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا. اور حمزہ پر زبر بھی آتا ہے, زیر بھی آتا ہے اور پیش بھی آتا ہے. تینوں حرکتیں آتی ہیں. آگے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش. حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. دیکھو حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, با حمزہ زر بی, یہ با الف زر بی کہیں نہیں دیکھا ہوگا تم نے. دیکھا کہیں پورا قرآن میں؟ تا الف زر تا الف زیر تی, تا اور الف ان کے ساتھ میں کسرہ یعنی زیر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا, ہے نا. ایسے ہی تا الف پیش تو, جیم الف پیش کہیں نہیں دیکھا ہوگا قرآن میں پیش کے ساتھ الف کو ساکن. لیکن ساکن اگر الف ہوتا ہے تو کہیں کے ساتھ ہوتا ہے؟ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. الف سمجھ میں آیا؟ لیکن حمزے کی یہ خاصیت ہے کہ حمزہ جو ہے ساکنہ پہ تینوں حرکتیں آتی ہے. حمزہ ساکنہ پہ ہم جیسے میں نے بتایا تو یہاں پہ زبر کے ساتھ آیا نا یو, تو یہاں پہ کائی کے ساتھ آیا, پیش کے ساتھ آیا. ایسے ہی زیر کی مثال بھی مل جائے گی. لیکن الف پہ صرف زبر آتا ہے. الف کے ساکن ہونے سے پہلے صرف الف ساکن ہوتا ہے لیکن اس کو جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. لیکن حمزہ ساکن ہوتا ہے, اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس پر جزم لکھا ہوا ہوتا ہے. اس پر جزم لکھا ہوا ہوتا ہے. الف شروع میں نہیں آتا, صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع, درمیان, آخر تینوں جگہ آتا ہے. الف صرف کہاں آتا ہے؟ شروع میں نہیں آتا. الف شروع میں نہیں آتا, درمیان میں آتا ہے اور کہاں آتا ہے؟ آخر میں آتا ہے.
अलिफ शुरू में कैसे नहीं आता? देखो बा अलिफ सबर बा साकिन होके आखिर में आया ना, और अलिफ और हमजा जो है तीनों जगह आता है, शुरू में भी और आखिर में भी और दरमियान में भी। यू तो दरमियान में आया ना, एक और आखिर में आया ना, और ऐसे ही शुरू में भी आ जाएगा। यू मेनू वमिनन नासे मेनू, यहाँ तो दरमियान में आया, लेकिन अगर खाली यू मेनू बोलेंगे तो कहाँ का आएगा? शुरू में आएगा। तो हमजा जो है दरमियान आखिर और शुरू तीनों जगह आ सकता है, शुरू दरमियान और आखिर तीनों जगह आ सकता है। लेकिन अलिफ जो है शुरू में नहीं आता, दरमियान और आखिर में आता है। जैसे कैसे? बलिल्लाहु लिल्लाहु, लिल्लाह दरमियान में आया ना, और ऐसे ही आखिर में भी आ सकता है। तव्वाबा आया ना, लेकिन शुरू में नहीं आ सकता अलिफ। समझ में आ गया ना? और हमजा जो है तीनों जगह आएगा, शुरू दरमियान और आखिर में। अलिफ साकिन होता है मगर उस पर जज़्म लिखा हुआ नहीं होता। अलिफ साकिन होता है और उस पर जज़्म लिखा हुआ नहीं होता। जैसे कि और हरूफ जब तक उन पर जज़्म न लिखा हो जाए वो साकिन नहीं कहलाते। लेकिन अलिफ की खासियत यह है कि बगैर जज़्म लिखे हुए साकिन कहलाता है। अगर अलिफ के ऊपर जज़्म लिखा जाए तो वो फिर अलिफ नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है? हमजा हो जाता है, हमजा। अगर अलिफ के ऊपर जज़्म लिख दिया जाए साकिन करने के बाद तो फिर वो क्या हो जाता है? हमजा हो जाता है। तो जज़्म को हटा दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? अगर कहीं पे हमजा साकिन हो, समझ में आ गया, और वहां से जज़्म हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा। जो पहले झटके से पढ़ा जा रहा था कैसे पढ़ा जाएगा? बिना झटके के पढ़ा जाएगा। जैसे अगर हम इस कैसे जज़्म हटा देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? रा अलिफ ज़बर रा। समझ आया? मखरज मालूम करने का तरीका। किसी हर्फ का मखरज मालूम करने के दो तरीके हैं। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो उसको साकिन करके उससे पहले हमजा मुतहर्रिक ले आए। दोनों मखरज मालूम करने के दो तरीके हैं। किसी भी मखरज को मालूम करने के दो तरीके हैं। और पहला तरीका मखरज मालूम करने का ये है कि किसी हर्फ को साकिन करके, किसी भी हर्फ को साकिन करके उसके शुरू में हमजा मुतहर्रिक ले आया। हमजा मुतहर्रिक यानी कि हरकत वाला हमजा। जैसे मसलन हमें जीम का मखरज मालूम करना है, हमें जीम का मखरज मालूम करना है तो जीम को साकिन करेंगे और उसके शुरू में हमजा मुतहर्रिक लेके आएंगे। जैसे हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़बर अज, तो हम उसके शुरू में हमजा मुतहर्रिक लाए। हमजा जीम ज़बर अज, और जहां आवाज हमारी रुक जाएगी वही उस हर्फ का क्या होगा? मखरज होगा। जब हमने जीम को साकिन किया
जब हमने जीन को साकिन कर दिया या किसी और हरफ को अपनी मखरज मालूम करना होगा हमें, तो हम उसको क्या करेंगे, साकिन करेंगे जीन की तरह। हमने जीन को साकिन किया और साकिन और हम जीन के शुरू में हम क्या लाए, हमजा, हमजा मुतहर्रिक मफ्तूह लाए। समझ में आया? यानी कि जबर वाला हमजा लाए, हमजा मुतहर्रिक मफ्तूह लाए। तो ऐसे किसी भी हर्फ को साकिन करके उसके शुरू में हमजा मुतहर्रिक ला सकते हैं हम, अगर किसी हर्फ का मखरज मालूम करना है। मसलन हमने जीन का मखरज मालूम किया, अज, हमजा जीन जबर अज, तो जहां हमारी अज की आवाज रुकी ना, ज की आवाज रुकी जहां, यही उस हर्फ का मखरज है जिसका हमें मखरज मालूम करना था, जिसको हमने साकिन किया है। जीन का मखरज मालूम हो गया, ज़बान का बीच और इसके मुकाबिल ऊपर का तालु। और दूसरा तरीका मखरज मालूम करने का ये है कि जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है, उसके आखिर में उसको फतहा देकर, इसको फतहा देकर, जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है उसको फतहा देंगे, उसको हम क्या देंगे, यानी कि सबक देंगे, और उसके आखिर में हाय साकिना को ज्यादा कर देंगे। मसलन हमें ताका जीम का मखरज मालूम करना है, तो हम जीम को फतहा देंगे, यानी कि जीम पर जबर लगाएंगे, और उसके आखिर में हाय साकिना को ज्यादा करेंगे। कौन सी हाय साकिना को? वो वाली हाय साकिना को जो अरबी में जब ज़मीर हिया ज़मीर बोलते हैं, जिसको ज़मीर बोलते हैं, हाय ज़मीर बोलते हैं जिसको अरबी ज़बान में हाय ज़मीर, तो हाय ज़मीर गोया हम इसको ज्यादा कर देंगे। जैसे जीम जा, समझ में आया? ऐसा नहीं जा, जब, तब, रह, गम, न, ला, समझ में आया? तो जब हमने बोला जा, तो अब जिस जगह से पहले में तो ये था कि जहां आवाज खत्म हो रही हो वही उस हर्फ का मखरज है, पहले तरीके में तो ये था। लेकिन इस दूसरे तरीके में ये है कि जहां से आवाज शुरू हो रही है, जहां से आवाज शुरू हो रही है, तो वही उस हर्फ का क्या है, मखरज है। जा, जब से आवाज शुरू हो रही तो जीम का मखरज पता लग गया। राह से शुरू हो रही तो आ का मखरज पता लग गया। समझ आया? तो ये दो तरीके मखरज मालूम करने के हैं, इन्हें भी पक्का याद रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब हम मखरज सिखाते हैं तो ये इम्तिहानी तौर पर सीखना, इसका सिखाना काम आता है बच्चों को। और बारीक हरफों का बयान, हरफ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ब्त है। देखो ये सात हरफ जो हैं पुर होते हैं हर हाल में, अगर इन पर ज़बर हो जब भी पुर होंगे, अगर इन पर क्या हो ज़ेर हो जब भी पुर होंगे, अगर इन पर पेश हो जब भी पुर होंगे, अगर ये कहीं तन्हा हो जब भी पुर होंगे, अगर ये कहीं साकिन है जब भी पुर होंगे। समझ में आया? ये सात हरूफ ऐसे हैं कि ये हर जगह क्या होंगे, पुर होंगे। कौन कौन से हरूफ हैं? खा, साद, ज़ाद, ता,
ज़ा, ग़ैन, क़ाफ़। ये 7 हर्फ ऐसे हैं, ये कुरान करीम में हर हाल में पुर होंगे, यानी कि मोटी और भारी जबान से पढ़े जाएंगे। एक है खा, एक है खा और एक है खा। तो खा ये तो बारीक होती है और खा ये पुर होती है। एक है ता, ये बारीक है। एक है जब हमने जबान का हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जबान की पुष्ट को हम टाइट यानी के सख्त करके पढ़ेंगे, समझ में आया? तो पुर निकलेगी, पुर निकलेगी। ये हमारा, मैंने तुम्हें मखरज में भी समझाया था, मखरज में भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो है, अगर हम हल्के से बोलेंगे राल, और अगर हम इसी पुष्ट को, इसी किनारे को जबान को सख्त करके टाइट करके लगाएंगे तो वाह। तो ये पुर और बारीक का फर्क है। एक है काफ, ये हर्फ मुस्तफीदा में से है काफ, यानी कि बारीक पढ़े जाने वाले हरफों में से छोटा काफ बोलते हैं हम जिसे। एक है 2 नुक्ते वाला काफ, जिसका हम बड़ा काफ बोलते हैं काफ। अब अगर हम बोलेंगे काला, काला, तो पुर हुआ ना, क्योंकि हमने जबान की जड़ को थोड़ा सख्त किया तो का निकला। और अगर हम जबान की जड़ को सख्त ना करके नरम कर लेंगे तो फिर क्या निकलेगा? काला, काला। समझ आया? जबान की जड़ को अगर हमने नरम किया तो छोटा काफ निकलेगा, और जबान की जड़ को हमने सख्त किया तो बड़ा काफ यानी कि पुर हो जाएगा काफ। इसी से बहुत माने बदल जाते हैं। कल्ब क्या है? कल्ब दिल, कल्ब कुत्ता, तो कितने माने बदल गए नापुर करने की वजह से। और ऐसे ही खा, एक है खा, ये उर्दू में आती है खा, लेकिन अरबी जबान में खा नहीं है, खा। समझ आया? एक है ता, हमने जबान के किनारे को हल्के से लगाया, जबान के किनारे को सनाया उंगलियां की जड़ में हल्के से लगाया ता, और इसी किनारे को हम अगर सख्त करके लगाएंगे समझ में आया? और अगर हमने इसी जबान के किनारे को हल्के से नहीं लगाया, जाल से हो गया नहीं, जबकि वा से है, अगर हम सख्त करके लगाएंगे तो वा निकलेगा। अगर हमने वा सख्त करने की बजाय जबान के किनारे को नरम कर दिया तो फिर वा के बजाय क्या बन जाएगा? राल। तो वलमु हो जाएगा। तो ये से ही मानों में फर्क हो जाता है। तो पुर और बारीक हरफों की मश्क कुरान करीम पढ़ते वक्त खूब करनी चाहिए, हर लफ्ज में करनी चाहिए। तो ये 7 हर्फ ऐसे हैं जो पुर पढ़े जाते हैं, यानी के सख्त जबान से पढ़े जाते हैं, केड़ा करके जबान को पढ़ा जाता है। देखो जा, सीन, स्वाद, स्वाद। जब हम स्वाद बोलेंगे तो हमारे सनाया सुखड़ा और सनाया उलिया स्वाद के बोलते टाइम फिसल जाएंगे, और जबान सख्ती, जो जबान जब हम ये बोलेंगे ना तो जबान जो है सख्त होनी चाहिए, हमारी टाइट होनी चाहिए। सीन, सीन में हमारी जबान टाइट नहीं हुई, नरम रहेगी। सीन, दोनों दांत मिलाओ सामने को, और सीन ऐसे जा, तो ये दोनों नरम हुए। और अगर हमें स्वाद पढ़ना है तो फिर हमें जबान को सख्त यानी कि टाइट करना पड़ेगा।
स्वाद जब हमारी ये स्वा वाली आवाज खत्म हो जाएगी तो सनाए सुबरा और सनाया उड़िया दोनों आपस में जुदाई कर इख्तियार कर लेंगे। फिर द बोलेंगे स्वाद, फिर द की आवाज आएगी, समझ आया? ऐसा ही वाद, ये तो वा बोलते हैं ना, तो इसको जो है इसमें कोई खास बात नहीं है, बस वाद में जो है अपना मखरज इख्तियार करना है हमें। हल्की सी जबान को हल्का सा जबान में सख्ती पैदा करके, यानी कि हल्का सा जबान को सख्त करके अपने मखरज पे लगा देना है वाद। इस सख्त करने के चक्कर में मैंने पिछली बार पिछले सबक में बताया था आपको, कुछ लोग इतना सख्त करते हैं वाद बना देते हैं जो दाल में शामिल हो जाता है, वो नहीं करना, हल्का सा सख्त करना है वाद। समझ आया? और समझ आई गया? गईन देखो, एक होता है गा गा और गालिबून गालिबून। अगर हम गालिबून पढ़ते हैं तो ये लफ्ज गलत हो जाता है, क्योंकि गाफ उर्दू में होता है, अरबी में नहीं होता। तो यहाँ हमें गाफ नहीं पढ़ना, बल्कि खूब पुर करके पढ़ना, हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से पढ़ना है। गईन गाफ, एक तो गाफ है, हलक के मुंह की तरफ वाला जो ऊपरी हिस्सा है उससे निकलना है गाफ। लेकिन एक हलक के मुंह की तरफ वाला अंदर वाला हिस्सा है, तो हमें गईन को अंदर वाले हिस्से से निकालना है। गईन गालिबून, गालिबून नहीं गालिबून। गावीना 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 तो वो लफ्ज बोलता है जो बच्चे बड़ा समझाना पड़ता है बच्चों को। आजकल अक्सर मदारिस में यही हो रहा है कि नूरानी कायदे को भी बच्चे को मश्क नहीं कराते, नूरानी कायदे में भी बच्चों को मश्क नहीं कराते, बस वो बोल रहा है गावीना, तो ठीक है गावीना बोलना। मैं ये कहता हूँ कि एक महीना भी लफ्ज में अच्छा करके पढ़ाओ। गावीना गाशिया, अब गाशिया और गाशिया दोनों में फर्क नजर आया नहीं आया? तो ऐसा ही माना में भी फर्क हो जाता है। समझ आ गई साथ? और खलक खलक, एक है खोली खोली का खलक, ये खे जो उर्दू में आती है वो तो अरबी में होती नहीं है, तो माने गलत होंगे, बल्कि पूरा ये उसी मुंह के अंदरूनी हिस्से से पढ़ा जाएगा। खा जहां से गईन पढ़ा गया, खलक खलक खुलिक, समझ आया? उनके अलावा बाकी हुर्फ़े मुस्तफ़ीदा हैं, उसके अलावा सब हर्फ़े मुस्तफ़ीदा हैं, यानी के बारीक पढ़ा जाने वाले हुरूफ हैं। हम ज़ाल को ज़ाल नहीं पढ़ सकते, समझ में आया? हम ता को क़ा नहीं पढ़ सकते, हम ज़ा को वा नहीं पढ़ सकते, ये सब बारीक पढ़े जाएंगे। लेकिन इन बारीक हर्फों में से 3 हर्फ ऐसे हैं जो कभी बारीक पढ़े जाते हैं और कभी पुर पढ़े जाते हैं। वो 3 लफ्ज कौन से हैं? नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 अल्लाह का नाम, नंबर 3 रा। अलिफ का कायदा ये है कि अगर अलिफ से पहले पुर हरफ आया है तो वो पुर होगा। जैसे अलिफ से बना है ना, अलिफ से पहले अलिफ साकिन से पहले अलिफ साकिन होता है, लेकिन उसमें जज़म लिखा हुआ नहीं होता। यहाँ पे अलिफ साकिन है ना, यहाँ पे जज़म नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे अलिफ साकिन से पहले क्या आया? पुर हरूफ काफ, समझ में आया? तो अलिफ का
قاعدہ یہ ہے پر حرف سے پہلے اگر وہ پر حرف کے ساتھ آئے، اس سے پہلے پر حرف ہوا تو پر پڑھا جائے گا الف، اور اس سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی کیا ہوگا؟ باریک پڑھا جائے گا، قال پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ الف سمجھ آ گیا؟ اور اس الف کو سمجھ میں آ گیا نا؟ اور اگر الف باریک لفظ کے ساتھ آئے گا تو پھر الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے زالا، زا باریک حرفوں میں سے ہے نا، حرف مستفیضہ میں سے، تو یہاں پہ حرف الف بھی باریک پڑھا جائے گا، زالا۔ اور اللہ کے نام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو، اللہ کے نام سے پہلے تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، یعنی کہ زبان کو سخت کر کے ٹائٹ کر کے پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، لل کا نام نہیں پر ہوئے گا، اللہ کا نام پر ہوگا، اللہ، لام مشدود آیا نا اس سے پہلے، رسول اللہ، رسول اللہ، تو اللہ جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا، زبان سخت زبان سے۔ اور ایسے ہی قال اللہ، قال اللہ، لام صبر لن آیا نا، اللہ، اللہ کے نام کی جو علامت ہے اس کو دیکھ کر پہچان لینا، اس کا علامت بنی ہوئے تو کیسا اللہ کا نام ہوتا ہے، کیسا عام نام ہوتا ہے۔ یہ ہم بچے کو سمجھاتے بھی ہیں جب ہم قرآن کریم سکھاتے ہیں قاعدے میں، تو اللہ کا نام کی ایک خصوصیت الگ ہے، یہ سب تم دیکھنے والے جانتے ہو، اور بچے کو یہ خصوصیت سمجھاتے بھی ہو۔ اور اگر اللہ کے، یہ دونوں سمجھ میں آ گئے نا، اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کا نام باریک ہوگا، جیسے باللہ، باللہ نہیں پڑھ سکتے ہم اسے باللہ، بلکہ کیا ہوگا؟ باللہ، بالام صرف بل آیا نا اللہ کے نام سے پہلے، للہ، جو للہ پڑھے گا فوراً ٹوک دے گا صحیح پڑھنے والا، للہ، سمجھ میں آ گیا؟ اور پھر ہے را، را کی تین حالتیں ہیں، را متحرک، رائے ساکن ما قبل متحرک، رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ را متحرک کا قاعدہ یہ ہے، را سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، پر، سخت زبان کے ساتھ منہ کو بھر کے، زبان میں نرمی رکھ کے نہیں پڑھیں گے را کو، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ زبان میں سختی رکھ کے پڑھیں گے، جیسے عودم، عودم، را پہ پیش آیا نا، عودم، رودم، رودم، ایسے نہیں پڑھیں گے، رودم، اگر ایسے پڑھیں گے تو را باریک ہو جائے گی، عودم۔ دیکھو میرے زبان کا جو حصہ نکلا ہوا ہے، اس زبان کو سختی دیں گے، اس حصے کو، جتنا حصہ میں نے نکال کے دکھایا، عودم، یہ جو کنارہ ہے نا زبان کی پشت، اس کو سختی دیں گے، عودم، ربک، 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 ربک۔ اگر اس کنارے کو، اگر اس کنارے کو سختی نہ دی ہم نے، سخت نہ کیا، شدید نہ کیا، تو یہ را باریک ہو جائے گی، ربک، را بازو رب آیا نا تو پر ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں سمجھ میں آ گئے نا، آ گئے؟ اگر را سے پہلے زیر ہو تو را باریک، یعنی کہ نرم آواز سے، ہلکی زبان سے پڑھی جائے گی، را باریک ہوگی، جیسے رجال، رجال،
और कोई जान नहीं पढ़ सकते हम इसे, और जबान में सख्ती दे के, जबान को सख्त करके नहीं पढ़ सकते हम इसको जबान को सख्त करके नहीं पढ़ सकते, और जान ऐसे नहीं पढ़ सकते, बल्कि जबान को नीचे रख के नरम करके पढ़ेंगे, रिजाल। समझ में आया? रिजाल, अमरी, वही ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसे पूर्ण नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें जेर है। रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक, रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक। देखो रा साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो, रा साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो, तो उसको कहते हैं रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक। रा साकिन हो और उससे पहले जबर जेर पेश हो, तो उसको रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक कहते हैं। तो रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक का भी यही कायदा है कि अगर रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक से पहले जबर पेश हो तो रा सख्त जबान से पुर अंदाज में पढ़ी जाए, पुर करके पढ़ी जाएगी। जैसे यरजिऊन, यरजिऊन, और क्या है गया यरजिऊन, समझ में आया? यरजिऊन ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसे जबान को नरम करके नहीं पढ़ सकते इसको, बल्कि जबान को शक्ति देके, सख्त हरकत देके पढ़ेंगे। यरजिऊन, ये आवाज जो है ना कानों में, इसकी पड़ जानी चाहिए। यरजिऊन ये पड़ जानी चाहिए कानों में। यरजिऊन, यर की जो ये ऐसे तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये डबल फा बन जाएगी फिर। यरजिऊन, कि जो है कि जो सुनने वाले को खुद महसूस हो जाए कि इसने जबान को सख्त करके लगाया है अपने मखरज पे। और अगर बारीक करनी हो तो बारीक का आसान तरीका है कि जबान को ढीला और नरम छोड़ दो। इसमें सख्त नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने वाला खुद महसूस कर लेगा कि इसने जबान को क्या क्या सख्त किया है। तो नरम करने का तो बहुत आसान तरीका है कि जबान को ढीला तो छोड़ के पढ़ लो। ये फिर समझ आया? लेकिन रात साकिन से पहले जेर हो, उसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं। रा साकिन से पहले क्या हो? जेर हो, तो उसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, रा साकिन से पहले जेर असली हो, आरजी ना हो। रा साकिन से पहले जेर असली हो, जेर आरजी ना हो। देखो आरजी हरकत वो होती है जो किसी भी वजह से गिर जाती है। समझ में आया? आरजी हो, रा जो बारीक होगी तो उसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं। उसमें से पहली शर्त ये है कि रा पे जो जेर हो वो असली होना चाहिए, किसी भी सूरत में हज़फ ना हो, गिरे ना। जैसे फिरऔना की जो रा की जेर है ये असली रा है, ये असली जेर है। अगर हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे जब भी ये बाकी रहेगी। अगर पूरी सांस को हम आयत एक ही सांस में पढ़ेंगे जब भी ये बाकी रहेगी। अगर किसी भी कवायद के तौर से हम इसको पढ़ेंगे तो फिर राहुना की रा जो है
ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، یہ کبھی بھی گرے گی نہیں۔ ایسی حرکت کو حرکت اصلی کہتے ہیں، حرکت عارضی نہیں کہتے۔ تو حرکت اصلی را کی فرعون کی را میں جو ہے زیر، یہ حرکت اصلی ہے، یہ زیر اصلی ہے۔ تو پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ زیر جو ہے را پر اصلی ہے، اصلی ہونا چاہیے، تو وہ را باریک پڑھی جائے گی، عارضی نہ ہو۔ نمبر 2، اور اگر عارضی ہوگا تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ اور اگر را پر زیر عارضی نہ ہو، اگر زیر پر را اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، کسی قاعدے کی وجہ سے گر بھی سکتی ہے، تو وہ را پھر باریک نہیں بلکہ کیسی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی۔ جیسے ہم سورہ فجر میں دیکھتے ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لأعذب عذابہ احد ولا یوزن یا ایتها النفس المطمئنہ۔ اگر ہم انہ پہ آیت کرتے تھے مطمئنہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوا؟ اگر یہاں آیت کرتے ہیں تو را پر ہوگی، کیونکہ یہاں کیا ہو گیا؟ کسر نہیں۔ دوسری مثال بتاؤ، دوسری مثال بتاؤ اس میں۔ یہی مثال ہے نا؟ ہم اگر ہم نے پڑھا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک ترجعی، تو یہاں جو ہے تارا پشتر ہے نا، ترجعی، لیکن ہم نے مطمئن یہاں پر آیت کر دی، پھر پڑھتے ہیں ہم ارجعی۔ اب ہم یہ ارجی جو لائے ہیں تو یہ عارضی لائے ہیں، یہاں پہ اصلی کیا ہے؟ اصلی تو یہاں پہ نہ ضمہ ہے نہ کسرہ ہے، کیونکہ ضمہ بھی گر گیا، ضمہ بھی کیا ہوا؟ گر گیا۔ ترجعی سے کیا ہو گیا؟ ارجعی، ترجعی سے ارجعی ہو گیا۔ تو یہ ضمہ بھی گر گیا، ضمہ بھی اصلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اور یہ اگر جو ہم نے زیر لگایا ہے ضمہ کی جگہ، تو یہ کسرہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ یہ زیر بھی کیا ہے؟ یہ زیر کیا ہے؟ عارضی ہے۔ تو اگر کہیں پہ زیر اصلی نہ ہو بلکہ کیسا ہو؟ عارضی ہو، یعنی کہ ضمہ یا پیش کو گرانے کے بعد آیا ہو کسی بھی قاعدے کی وجہ سے، تو پھر اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، پر باریک نہیں پڑھیں گے۔ جو عارضی طور سے زیر آیا ہو اس را کسی بھی را پہ، تو اس را کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، پر۔ اور رائے جہاں پر را اصلی ہو تو سنی لیا تم نے، پر پڑھیں گے، اور باریک پڑھیں گے۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں را کو پر اور باریک پڑھنے کے، باریک پڑھنے کے۔ نمبر 3، را ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو تو را باریک ہوگی۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اسی، دیکھو یہ جو ہے ایک ہی قاعدے میں تھا کہ اگر را اصلی ہو، را پر زیر اصلی ہو، تو وہ را پر نہیں بلکہ باریک پڑھی جائے گی۔ اور اگر را اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، جیسے ارجی کی راہ بھی بتائی، وہاں پر ترجی سے پیش گر گیا، تو وہ راہ بلکہ باریک نہیں بلکہ کیسی پڑھی جائے گی؟ عارضی والی راہ پر پڑھی جائے گی۔
अब है रा के बारीक पढ़ने की 3 शर्तें थी ना, एक शर्त तो यहाँ तक हो चुकी, जी अब है नंबर 2। रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में हो तो रा बारीक होगी। रा साकिन से पहले, है ना, जी रा साकिन से पहले जेर उसी कलमे में हो, उसी कलमे में, दूसरे कलमे में ना हो, दूसरे कलमे में ना हो, उसी कलमे में हो तो रा कैसी होगी? बारीक बारीक होगी, बारीक। जैसे फिरऔना, एक फिरऔन एक कलमा है ना, जी फिरऔन एक लफ्ज है, तो फिरऔन के अंदर ही क्या है? रा भी है और जेर भी है, एक ही कलमे में, तो ऐसी रा क्या होगी? बारीक बारीक होगी। लेकिन अगर रा दूसरे कलमे में है और जेर दूसरे कलमे में है तो फिर रा बारीक नहीं बल्कि क्या होगी? पुर होगी। जैसे रब, रब्बिर हम, रब्बिरहम्हुमा, रब्बिर, बाराज़िर बिर, रब रब्बी, रब्बिरहम्हुमा, रब्बिर, तो रब एक दूसरे कलमे में है ना, रब्बिर, रब अलग कलमे में है और बिर अलग कलमे में है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे क्या होगा? बिर, बिर भी पूर्व पड़ी जाएगी रब की तरह, समझ में आ गया? दूसरी मिसाल क्या है इसकी? रब्बिरजिऊनी, यही है ना। देखो रब दूसरे कलमे में है, जिऊनी दूसरे कलमे में है, तो बिरजिऊनी की जो रहा है इसमें जेर है ना, लेकिन ये भी क्या पढ़ा जाएगा? पूर्व पढ़ा जाएगा, क्योंकि जेर दूसरे कलमे में है और रा पहले कलमे में है। समझ में आ गया है? अगर क्या बताया था? नंबर 2, बारीक होगी, जैसे फिरऔना, अगर जेर दूसरे लफ्ज में होगा तो रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर होगी, जैसे रब्बिरहम्हुमा, रब्बिरजिऊना। नंबर 2, नंबर दो अगर रा साकिन से पहले दूसरे लफ्ज में होगा तो रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी, रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी। यानी कि अगर जेर और रा एक ही कलमे में है तो रा पुर बारीक होगी, जैसे फिरऔना की रा, और अगर दूसरे लफ्ज में है, रा दूसरे लफ्ज में है, जेर दूसरे लफ्ज में है, तो फिर रा क्या होगा? रा पुर होगी। देखो रब, जैसा रब है, रब दूसरे कलमे में है उससे, और बिर दूसरे कलमे में है, तो ये रा से जो पहले फतहा आया है, ये रा से जो पहले फतहा आया है, ये पुर बनने की वजह ये है इसकी, रा से पहले फतहा जो आया है रब पे, तो बिर के पुर होने की वजह ये रा का फतहा बना है और रब का फतहा बना है। कभी कोई ये कहे कि यहाँ पे तो अलग है, यहाँ पे अलग अलग लफ्ज, यानी कि जेर और रा अलग कलमे में तो दिख ही नहीं रही, तो ये जेर अलग कलमे में होने की वजह ये है कि जैसा रब की रा पुर होगी ना, ऐसे बिर की रा पुर होगी। यानी कि पुर एक तो पुर रा आ गई, एक बारीक रा आ गई,
समझ में आया? एक कलमे में एक जुज तो है बारीक रा का, एक है पुर रा का। अगर ये दो रा दोनों मिल जाती हैं तो फिर हम कैसा पढ़ेंगे? दोनों को बारीक पढ़ेंगे, यानी कि बाद वाली को भी बारीक पढ़ेंगे। पहली वाली का मसला नहीं है, पहली वाली का मसला हो नहीं है, क्योंकि पहले वाली को तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे उस पर हरकत आएगी। अगर पहली पे जेर आया तो फिर जेर ही पढ़ेंगे पहली को, लेकिन दूसरी रा को क्या पढ़ेंगे? पोर पढ़ेंगे, पोर। अगर जुदा जुदा कलमों में आई है, जैसे रब्बिर हुमा, रब्बिर हम हुमा में आई है रब्बिर, समझ में आया? यानी कि रब की रा पुर होगी तो बिर की रा भी पुर होगी, इसलिए कि ये दोनों अलग अलग कलमों में हैं। और अगर किसी वजह से रब ना होता, यहाँ बिर जीवनी होती खाली, तो फिर क्या होती? ये रा बारीक होती। समझ में आया? आ जाएगा, दोबारा सुन लेना फिर। नंबर 3, रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हुर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी। रा साकिन से पहले है ना, रा साकिन के बाद है? रा साकिना के बाद अगर हर्फे मस्तालिया में से यानी खुस्सा ज़ब्तिन क़िज़ में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी, बल्कि बारीक होगी, पुर नहीं होगी। जैसे फिर आऊना, देखो फिर फाराज़ फिर के बाद क्या है? आइन, जो कि हर्फ मुस्तालिया में से नहीं है। समझ में आया? अगर फिर के बाद फाराज़ फिर के बाद हर्फ मुस्तालिया का कोई हर्फ आता तो रा क्या होती? पुर होती। ज़ेर होने के बावजूद भी रा क्या होती? पुर होती। लेकिन यहाँ पे आइन आया तो अब फिर आउना की रा बारीक होगी, पुर नहीं होगी। और अगर रा साकिन के बाद आइन की जगह कोई पुर हर्फ आएगा फिर आउना में या किसी और लफ्ज में, अगर हर्फ रा साकिन के बाद हर्फे मुस्तालिया में से 7 हर्फों में से कोई भी हर्फ आएगा तो ये रा पुर होगी। जैसे वो पुर पढ़ा जाएगा स्वाद, ऐसे ही ये रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे मेरो स्वाद, देखो मीम रा ज़ेर मेरो, लेकिन आगे स्वाद है पुर लफ्ज, तो ये भी स्वाद की तरह ये जो है ना तो हरकत आरजी की परवाह करेगा ये हर्फ मुस्तालिया, ना हरकत असली की परवाह करेगा, बल्कि हर हाल में ये रा कैसी पढ़ी जाएगी? पुर पढ़ी जाएगी। अगर रा साकिन के बाद हर्फे मुस्तालिया यानी 7 हर्फों में से पुर होने वाले हर्फों में से कोई भी हर्फ हो तो वो उन पर हर्फों की तरह राबी पुर पढ़ी जाएगी। जैसे मेरो स्वाद लबिल मेरो साद क्यों तस। कुरान पाक में इस कायदे के इन 5 लफ्ज हैं और 5 लफ्ज पढ़ के सुनाओ क्या क्या है? मेरो स्वाद, मेरो स्वाद, लबिल मेरो स्वाद, किरतास, फिरक़तुन। कुरान करीम में इस कायदे के यही 5 लफ्ज हैं, यानी कि कुरान करीम में रा साकिन के बाद जो हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आएगा, रा साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया में से जो कोई हर्फ आएगा तो उस कायदे के इस कायदे के जो हैं कुरान करीम में यही 5 लफ्ज हैं। नंबर 1 एरो स्वाद साद आया, नंबर 2 मेरो स्वाद साद आया, नंबर 3 लबिल मेरो स्वाद। तो इन तीनों में रा साकिन के बाद स्वाद आया। आगे पास तो रा साकिन के बाद पा आया और फिर रा साकिन के बाद काफ आया और
فرقن میں خلف ہے، یعنی کہ اختلاف ہے قراء کا فرقن میں کہ اس کی راہ کو پر پڑھنا بھی جائز ہے اور باریک پڑھنا بھی جائز ہے۔ را ساکن ساکن سنو دو بار ہے یہ تو را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ تھا، لیکن یہاں ہے را ساکن ساکن دو بار، یعنی کہ دو ساکن کے بعد را، یا یہ کیا ہو کہ را سے پہلے دو ساکن، را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ، یعنی کہ را ساکن سے پہلے دو ساکن ہونے چاہیے، اس کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ زبر پیش ہوگا تو اور باریک ہوگا تو زیر ہوگا تو باریک، جیسے ون فجر، دیکھو ون ایک ساکن فج، دو ساکن فجر، فج دو ساکن ری، اب آیا را ون فجر، سمجھ میں آیا؟ اور دیکھو پڑھ کے وقت پڑھو گا ایک بار، را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ، را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہے تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، جیسے والفجر والعصر۔ دیکھو را ساکن ساکن یہ میں بتا ہی چکا ہوں، دو ساکن ہونے چاہیے را سے پہلے، لیکن قراء حضرات نے یہ فرمایا ہے، صاحب کتاب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی شرط یہ بھی ہے کہ یہ حالت وقفی میں ہوتا ہے۔ دو شرطیں فرمائی اس کی، نمبر ایک تو حالت وقفی میں ہوگا، نمبر دو ایک یا پڑھ کے دیکھو را ساکن ساکن ما قبل متحرک کی حالت وقف میں ہوتی ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ، یہ اگر را ساکن سے پہلے، اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو، اگر یا ساکن ہوگا ان دو ساکنوں میں، اگر یا ساکن ہوگا تو پھر را کیسی ہوگی؟ باریک ہوگی، باریک، سمجھ میں آیا؟ اب پیش ہوتے ہوئے بھی را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی، را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ یا کے علاوہ کوئی اور لفظ ساکن ہونا چاہیے، 28 لفظوں میں سے کل حروف کتنے ہیں؟ تو یا کو چھوڑ کر 28 حروف ہوئے، 28 حروفوں میں سے کوئی اور حروف کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے۔ اگر یا ساکن ہوا تو پھر قاعدہ بدل جائے گا۔ تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقفی میں ہوتا ہے، یعنی کہ وقف کی حالت میں ہوتا ہے، آیت کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، سانس توڑنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کیا ہے اس کا قاعدہ؟ پڑھو را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہے، را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہے تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ یا کے علاوہ اگر اس را سے پہلے زبر پیش ہے تو را پر ہوگی، اور زیر ہے تو را باریک ہوگی، لیکن یا ساکن نہیں ہونا چاہیے، یہ دھیان رکھنا، یا ساکن ہو گیا تو را کیا ہو جائے گی پھر ہر حال میں؟ کیونکہ اگر را ساکن، اگر را سے پہلے یا ہو، اگر را سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہر حال میں کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے۔ تو یا ساکن نہیں ہونا چاہیے، جیسے والفجر، تو والفجر میں ہم نے کیا دیکھا؟ لام ساکن ہے، جیم ساکن ہے۔ والعصر، تو والعصر میں ہم نے کیا دیکھا؟ لام ساکن ہے اور صاد ساکن ہے، سمجھ میں آیا؟ تو
ان دونوں سے پہلے، را سے پہلے اگر یا کے علاوہ کوئی بھی لفظ ساکن ہے تو را پر زبر پیش ہوگا تو را پر اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، اور اگر یا سے را سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے خبیر، بصیر، قدیر۔ دیکھو بصیر، بصیر میں صاد پہلے ہے، ایک ہی کلمے میں ہے نا را اور صاد، پہلے ہے بعد میں نہیں ہے۔ اگر را کے بعد ایک ہی کلمے میں آ جاتا صاد تو پھر را کیا ہوتی باریک کے بجائے؟ پر ہوتی، جو پہلے قاعدہ گزر چکا، جس کے 5 لفظ ہیں قرآن کریم میں۔ پڑھو۔ اور پیش کی قرآن مثال جو ہے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ کیسے پیش کی مثال؟ والفجر، والفجر، والعشر، یہ جو ہے را ساکن، ساکن ما قبل متحرک، را سے پہلے جو ہے تو ساکن ہونے چاہیے، تو ان سے پہلے زبر اور زیر، اس کی مثال تو قرآن میں مل جاتی ہے، لیکن را ساکن، ساکن یعنی کہ را سے پہلے دو ساکن ہو، ان کی مثال پیش والی نہیں ملتی، پیش والی قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن وہ اصولاً کہہ دیا زبر پیش ہو تو پر ہوگی، لیکن پیش کی مثال قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اور اس میں یہ بات کہی ہے انہوں نے، ایک تو را خود ساکن ہوگی وقت کی حالت میں، ایک رائز آکنے سے پہلے حرف ساکن ہوگا، ایک را ساکن، را ساکن ہے نا، را ساکن تو وقف کی حالت میں تو را خود ساکن ہوگی نا، را کی حالت میں تو نہیں، وقف کی حالت میں تو را کو خود ساکن کریں گے، وہ تو خود بخود ساکن ہو جائے گی۔ را کی انہوں نے کیا کہا؟ را ساکن، ایک ہو گیا ساکن، را ساکن، ساکن ما قبل متحرک، 3 لفظ کہے نا انہوں نے، سمجھ میں آیا؟ ایک تو را ساکن، اب را ساکن سے دو، را ساکن سے پہلے 2 ساکن ہونے چاہیے، لیکن یہ اسر، یسر، نار، نور، اس میں تو واو، اس میں تو لام ساکن ہوگا نا۔ را ساکن، ساکن ما قبل متحرک، تو یہ جو ہے دونوں جمع ہوں گے نا اس میں، را ساکن، ساکن ما قبل متحرک، دونوں شامل ہوں گے نا اس میں۔ دیکھو را سے پہلے 2 ساکن ہونے ضروری ہے، را سے پہلے 2 ساکن ہونے ضروری ہے، چاہے وہ را کو ملا کر ہوں، چاہے وہ را سے جدا ہوں، 2 ساکن ہونے ضروری ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو نار، نور، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں 2 ساکن بھی جمع ہو سکتے ہیں اور 3 ساکن بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک حرف بھی ساکن ہو سکتا ہے، 2 لفظ بھی ساکن ہو سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ میں نے جیسے پیچھے والفجر میں سمجھایا، تو وہاں پہ 2 ساکن ہو گئے، تیسرا ساکن فجر کی راہ میں ہو گیا، لیکن اس میں جو ہے 3 کی بجائے 2 ساکن بھی جمع ہو سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس میں 3 کی بجائے
दो साकिन भी जमा हो सकते हैं, जैसे नार, एक साकिन तो रा का हो गया, एक साकिन नून वाव का, वाव साकिन है, नू नार, अलिफ पे साकिन है ना, जैसा लिखा हुआ तो नहीं है ना, नूर, रा का साकिन हो गया और वाव का साकिन हो गया। और ये साकिन दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन ये हालत वक्फी वाला जो सिस्टम है ना, मुसन्निफ ने ये बताया है कि हालत वक्फी वाला सिस्टम है, ये हालत वक्फी वाला सिस्टम जो है ये ज़बर में होगा या ज़ेर में होगा। समझ में आया? ये हालत वक्फी वाला, हालत वक्फी की मिसाल पेश की नहीं है कुरान में, पेश वाली मिसाल कुरान में हालत वक्फी की नहीं है। रा में मतलब राबी, रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक भी हो। समझ में आया? रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक भी हो और हालत वक्फी भी हो। नंबर एक, रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक भी हो, और नंबर दो, हालत वक्फी भी हो। दो चीजें जमा हो गई। अब पेश जमा नहीं हो सकता इसमें, या तो ज़बर होगा या ज़ेर होगा। पेश की मिसाल कुरान का पाक में नहीं है। अब तो समझ में आया या अब भी नहीं आया? अगर तीन साकिन होंगे तो उसका भी यही कायदा है, दो साकिन होंगे तो उसका भी यही कायदा है, चार साकिन हो गए तो उसका भी यही कायदा है, एक ही कलमे में हो शर्त यह है, पांच साकिन हो गए तो उसका भी यही कायदा है। लेकिन शर्त यह है कि एक ही कलमे में हो और रा से पहले हो और हालत वक्फी में हो। समझ में आया? अगर रा से पहले साकिन हो और राफिद साकिन हो, जब भी साकिन साकिन रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक हो गया हो तो ठीक है ना। एक रा साकिन है फिर उससे पहले साकिन है, तो ये रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक हो गया, ठीक है। फिर एक रा साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक हो गया, ये दो साकिन हो गए रा साकिन से पहले। यानी कि रा से पहले कितने भी साकिन हो जाएं, ज़बर पेश होना चाहिए रा से फौरन पहले। ये बात याद रखो, रा से फौरन पहले क्या साकिन ना होनी चाहिए। अगर रा से फौरन पहले या साकिन हो गई तो रा बारीक होगी, और अगर रा से पहले साकिन है फिर उससे पहले या साकिन है तो फिर रा बारीक और पढ़ने के दूसरे कायदे होंगे। समझ में आ गया? और राय मुमाला हो रहा है जिसमें इमाला किया गया हो, ये हर हाल में बारीक होगी। ये इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में सिर्फ कुरान करीम में एक मर्तबा है, एक जगह है। कहाँ पे? 12वें पारे में, बिस्मिल्लाहि मजरेहा, सूरह हूद में मजरेहा ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसे फुल करके मजरेहा। इस रा की एक खासियत यह है कि बारीक के साथ साथ मजहूल भी पढ़ेंगे। कुरान करीम में इसके अलावा कहीं मजहूल पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन इस रा की खुसूसियत यह है इसको बारीक पढ़ने के साथ साथ मजहूल भी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, मुरसाहा के रा को पूर्ण करेंगे। और राम शद्दत मुतहर्रिक पर अगर ज़बर पेश होगा तो पुर ज़ेर हो तो बारीक, रा मुशद्दत मुतहर्रिक पर, यानी कि ये बिल्कुल वही कायदा है जो रा मुतहर्रिक का है। रा मुतहर्रिक बस वही समझ लो इसे, रा मुतहर्रिक का कायदा कि इससे पहले ज़बर पेश हो तो पुर ज़ेर हो तो बारीक, जैसे
सिरन सर्वन, सुर्रन, दुर्रियन। रा साकिन से पहले अगर जबर पेश हो, रा साकिन मुशद्दद से पहले, रा मुशद्दद से पहले, रा मुशद्दद मुतहर्रिक से पहले, मुतहर्रिक तो हो ही गई, जाहिर बात है क्योंकि मुतहर्रिक के बिना तो ये मुशद्दद भी नहीं बनने की। तो रा मुशद्दद से पहले जबर पेश हो तो पुर और जेर हो तो बारीक। रा मुशद्दद साकिन से पहले अगर जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारीक। ये भी सेम वही कायदा है। रा साकिन, रा मुशद्दद साकिन से पहले जबर पेश हो तो रा पुर होगी और जेर हो तो रा बारीक होगी। इसको बिल्कुल उससे ही कयास करो, रा मुतहर्रिक से ही। इसकी मिसाल क्या है, पहले इसकी मिसाल तो बताओ। मुस्तक़र्रुन, मुस्तमिरुन, ला यज़ुर्रु। मुस्तमिर की रा बारीक होगी कि मीम पे जेर है। राय मुरामा, राय मुरामा वो रा है जिस पर वक्फ बिर्रूम किया जाए। उसका कायदा ये है कि इससे पहले जबर पेश हो तो, इससे पहले पेश हो तो पुर और जेर हो तो बारीक, क्योंकि पेश इसलिए कि वक्फ बिर्रूम जो है वो जम्मा में किया जाता है, पेश में किया जाता है। जबर में वक्फ बिर्रूम नहीं होता। तो इसकी मिसाल क्या है? कदीर, कदीर वक्फ बिर्रूम। रोम होठों की एक खास हरकत का नाम है, ये मैंने तुम्हें समझाया था और आगे भी समझाऊंगा। तो ये एक खास, जब हम नस्तईनु, नस्तईन कानून बोलते हैं तो हमारे होठ जो है खास हरकत देते हैं। कदीर, जब हम कदीर की राह को निबट जाएंगे तो हमारे होठ हल्का सा ना देखने वाली एक हरकत देते हैं, उसको रोम, रोम बोलते हैं, रोम। और इस ठहरने को वक्फ बिर्रूम बोलते हैं। तो वक्फ बिर्रूम, राय मुरामा वो राह है जिस पर वक्फ बिर्रूम किया जाए, और उसका कायदा ये है उससे पहले पेश हो तो रा पुर होगी और जेर हो तो बारीक होगी। जैसे फज्र, फज्र में अगर वक्फ करेंगे हम तो रा पुर होगी, इसलिए रा साकिन, साकिन माक़ूबुल मुतहर्रिक की वजह से। और अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो फजर की रा बारीक होगी। बारीक किस लिए होगी कि उसमें असली वाला कसरा है, कसरा असली है। समझ में आया? पुर होने का इख्तिलाफ तो सारा जब है जब उस पर वक्फ आ जाए। वक्फ की हालत में पुर होगी। पुर तो इसलिए भी होगी, मां साकिन माक़ूबुल मुतहर्रिक से पहले क्या है, और पुर इसलिए भी होगी कि राय मुरामा बारीक तो जब भी होगी जब वक्फ नहीं होगा, और वक्फ ना होने की वजह से हरकत असली है। हरकत असली को पढ़ेंगे तो बारीकी ही होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।